This is Dr. Supreet and we'll be continuing the series of our income under the head capital gains. So we were discussing those points wherein we were saying that it will not be considered as a transfer, wherein no capital gains would be charged up onto the same in case there being, you could say, such sort of categories which have been taken up as we have taken up the previous cases of transfer of sovereign gold bonds by any individual for redemption. So taking up the series, there are, you could say, the transfer wherein by way of conversion of your preference shares into the equity shares or the bonds or the debentures or into another share, right? So that means what? There being any conversion, जब आप convert कर रहे हैं अपनी preference shares को equity shares में या debentures में या bonds में या किसी और other share में, right? So उस transfer को, उस conversion को जो है appropriately जो है हम classify नहीं करते हैं as a transfer under the head capital gains, right? Similarly, अगर there being any land which is transferred by any sink industrial company, that means those companies which were making the losses and उन companies के through any sale of land हुआ है, any transfer हुआ है by those sink industrial companies, then we will say that it is not a transfer which should be taxable under the head capital gains, right? Then if we say there being any transfer in the scheme of lending securities, wherein we are sort of lending the securities to someone else, that transfer will also not be considered as a transfer, and that means what? No capital gains would be charged onto the same. Similarly, any sort of your transfer of your art to the national museums, right? Any transfer of your capital assets by a private company or any sort of your public, you could say, when we say a public company, here I mean the unlisted public company. On, let's say, there being any conversion, let's say कि public company का आपका unlisted public company का या private company का आपका conversion हुआ LLP में, right? और उस कन्वर्शन के प्रोसेस में अगर कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर हुए हैं तो वहाँ भी हम इसे कहेंगे कि हम ठीक है कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ है, लेकिन हम इसको वैसे ट्रांसफर नहीं कंसिडर करेंगे कि जिसके ऊपर हमारा जो है सीजी लगाए हो. सिमिलरली हम कहते हैं कि कोई भी ट्रांसफर है ऑफ यूनिट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड प्लान एंड इन टर्न ऑफ, यू कुड से, जो आपने ट्रांसफर करी है यूनिट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड प्लान, आपको कंसिडरेशन में कोई और यूनिट्स मिल रही हैं, तो वो जो एक्सचेंज का स्कीम है जहाँ यू आर ट्रांसफरिंग वन यूनिट या यू कुड से यू आर ट्रांसफरिंग फ्यू यूनिट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड प्लान and in return you are getting some another set of units, that means they are not to be considered you could say as a valid transfer as per your capital gains. Now when do we consider a transfer as a complete and a valid and an effective one? We say if there being a movable property, that means आपकी ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो आप मूव कर सकते हैं, दे सकते हैं एक पर्सन से सेकंड पर्सन को. लेट अस से एनी आर्ट, लेट अस से एनी लेट मी से एनी इलेक्ट्रॉनिक्स, लेट्स से कंप्यूटर्स, और लेट्स से any sort of a jewelry, right? That can be movable. So if it is a movable property, so with respect to that movable property, whenever that title to ownership of the property, it passes on to the another person, right? With a contract to sell means that there being a contract between the two person, and when we see a contract, that means there being an agreement, and then there being agreement is supplemented by the legal obligation, so that becomes a contract. So whenever there being a contract to sell and the title to the ownership of the property, it passes on to the another person, we consider it as a valid transfer, right? That means transfer आपका complete होता है जब आप अपने property की जो movable property इस case में उसकी जो ownership है second person को जब आप transfer करते हैं. But what about immovable property, यानी कि जो property move नहीं हो सकती है, जैसे कि आपकी land and building, right? So अगर उस land and building की registration है, यानी कि registry हुई है, deed है, तो title उसी हिसाब से आपका title यहाँ मतलब हुआ आपका ownership, उसी हिसाब से आपका मूव ऑन करेगा जैसा आपका रजिस्ट्रेशन डीड में मेंशन करा है, ठीक है. और जिस दिन वो रजिस्ट्री कंप्लीट होती है हम कहते हैं कि ट्रांसफर जो है हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है एंड इट इज अ कंप्लीट एंड एन इफेक्टिव वन, राइट. सिमिलरली अगर रजिस्ट्री नहीं होती है तो हम ये कहते हैं कि उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में आपको
एज पर सेक्शन 53A कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा. दैट मीन्स देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज फॉर द सेल एंड परचेज. देन उस अग्रीमेंट से रिलेटेड कंसिडरेशन हुई है एंड देन जो है पोजेशन है वो ट्रांसफर किया गया है सेकेंड पर्सन को. सो जब ये कंडीशंस आपकी कंप्लीट होती हैं then we could say that this transfer is a complete and it's an effective one. Right. Now, अभी तक हमने कैपिटल एसेट्स के बारे में पढ़ा, बेसिक नुआंसेस पढ़े, कुछ you could say little we were into technicalities, much you could say theoretical rules. अब थोड़ा सा इसके ओवरव्यू के ऊपर आते हैं कि कैपिटल एसेट्स को हम क्लासिफाई किस में करते हैं. कैपिटल एसेट्स हमारे जो है दो कैटेगरीज में क्लासिफाई होते हैं. One is our short-term capital assets and another one is our long-term capital assets. Now, जैसे short-term word use किया जा रहा है, तो short मतलब which is for you are holding the asset for a shorter period of time. Which means what? Because this shorter period of time is also defined by the act. It says any capital asset. तो पहली चीज है कोई भी capital asset होना उसका जरूरी है. और वो कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं हम पीछे पढ़ते हुए आए हैं अभी तक. ठीक है. और कौन से कंसिडर नहीं होंगे वो लिस्ट भी हमने अभी चेक करी है. राइट. नाउ इट सेज अगर आप किसी भी कैपिटल एसेट्स को 36 मंथ से ज्यादा होल्ड नहीं कर रहे हैं उसको ट्रांसफर करने से पहले, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा और उससे रिलेटेड आपका जो भी गेन होगा वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ. राइट. बट कुछ एक्सेप्शंस है. एक्सेप्शन क्या कहते हैं कि ठीक है 36 मंथ्स का पीरियड हम कंसिडर करते हैं, बट कुछ एक्सेप्शनल कैटेगरीज हैं जहां पर ये पीरियड है ना थोड़ा और रिड्यूस हो जाएगा. वो पीरियड कितना हो जाएगा? 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स की हमारी दो सब ब्रैकेट्स हैं. अब जब हम 12 मंथ्स की बात कर रहे हैं तो हमने कुछ डिफाइन करा है कि किस केस में हम जो है 12 मंथ्स का पीरियड लेंगे और उनको कंसिडर किया जाएगा एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट. तो हम कहते हैं कि जब जो हमारा कैपिटल एसेट है वो ट्रांसफर हो रहा है आफ्टर 10th जुलाई 2014, यानी कि ट्रांसफर आपका हुआ 2014 10 जुलाई के बाद. और ट्रांसफर किन चीजों का? अगर ट्रांसफर होता है आपका इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स का, और वो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स जो कि लिस्टेड हैं, राइट, किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अगर वो लिस्टेड है और उनका आप ट्रांसफर कर रहे हैं सिर्फ 12 महीने ही होल्ड अप करने के बाद. राइट. अब आपको 36 मंथ्स होल्ड अप नहीं करना पड़ेगा. अगर आप 12 महीने के बाद भी उसको होल्ड अप सेल आउट कर रहे हैं तो 12 महीने तक तो हम कंसिडर कर लेंगे कि शॉर्ट टर्म है. बट जैसे 12 महीने से ज्यादा का टाइम पीरियड होता है तो हम क्या कहेंगे वो शॉर्ट टर्म नहीं है. उसके ऊपर जो भी आपको गेन हो रहा है वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है. राइट. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैटेगरीज में जो है आप कहते हो कि 12 मंथ्स का पीरियड जो है उससे अगर नीचे है या अप टू 12 मंथ्स है तो इट इज योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. बट जैसे ही वो 12 मंथ्स का पीरियड एक्सीड करता है तो इन सब लिस्ट ऑफ कैटेगरीज में वो कंसिडर किया जाएगा एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. राइट. बट एक चीज ध्यान रखिएगा, द ट्रांसफर शुड टेक प्लेस आफ्टर 10th जुलाई 2014. Now, जैसे मैंने कहा equity preference shares, those should be listed into recognized stock exchange. Any securities which are listed into recognized stock exchange, any units of your Union Trust of India, right, or Unit Trust of India. Then we have units of your equity oriented mutual funds, zero coupon bonds. So इससे related आप जब भी ट्रांसफर करेंगे इन पर्टिकुलर सिक्योरिटी से रिलेटेड, और अगर आपका जो होल्डिंग पीरियड है 12 महीने से ज्यादा का है तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कंसिडर किया जाएगा और उससे रिलेटेड जो भी आपको गेन्स या जो भी आपको लॉसेस होंगे वो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से लॉसेस कंसिडर किए जाएंगे. राइट. तो ये हमारी सब जो मैंने कहा था दो सब सेक्शंस हैं, दो सब सेगमेंट्स हैं. तो ये हमारा फर्स्ट वन था जिसमें हमने 12 मंथ्स की बात करी. सेकेंड इज आर फॉर 24 मंथ्स, यानी कि अब जो इक्विटी है या प्रेफरेंस शेयर्स हैं आपके अनलिस्टेड है. अभी तक हमने लिस्टेड शेयर्स की बात करी, हम कह रहे हैं कि अब आपके जो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स हैं दीज आर योर अनलिस्टेड, और जो ट्रांसफर हुआ है वो 1 अप्रैल 2016 के बाद हुआ है. तो उस केस में हमारा पीरियड हम कहते हैं कि ना 12 महीने ना 36 महीने, इट विल बी योर 24 मंथ्स. राइट. यानी कि 24 महीने के बाद अगर आप उसको ट्रांसफर करते हैं तो अप टू 24 महीने तक कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का वो कंसिडर किया जाएगा.
बट अगर आप उसको सपोज करो 26 मंथ्स के लिए आपने होल्ड करा और 26 महीने एसेट्स अपने पास रखने के बाद आपने उसको सेल आउट करा, तो उसके ऊपर जो भी आपको गेन होगा वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंसिडर किया जाएगा, ना कि शॉर्ट टर्म, क्योंकि इन कैटेगरीज में हमने पीरियड डिफाइन कर दिया कि वो 24 मंथ्स तक ही रहेगा। सिमिलरली अगर कोई आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसका जो ट्रांसफर है 1 अप्रैल 2017 ऑन एंड आफ्टर हुआ है, सो विद रिस्पेक्ट टू द सेम हम जो पीरियड कंसिडर करते हैं 24 मंथ्स का। एल्स अपार्ट फ्रॉम दीज कैटेगरीज जो मैंने 12 मंथ्स में जैसे कि बोला, इक्विटी शेयर्स बट लिस्टेड वंस, ठीक है, सिक्योरिटीज बट लिस्टेड वन, राइट, यूटीआई के यूनिट्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स या जीरो कूपन बॉन्ड्स जो हैं आपके, तो उस केस में 12 महीने तक का पीरियड। और अगर आपके अनलिस्टेड इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स हैं या इमूवेबल प्रॉपर्टी है और ट्रांसफर उसका 2017 के बाद होता है 1 अप्रैल, सो उस टाइम पीरियड में या उस केस में आपका जो टाइम पीरियड होगा इट विल बी योर 24 मंथ्स, राइट। अदरवाइज बाकी सब लिस्ट ऑफ कैटेगरीज में अगर आप किसी भी टाइप का अपना कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं देन द पीरियड इज 36 मंथ्स। एंड कैपिटल एसेट सिमिलरली आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कैसे इसका जो वाइस वर्सा केस होगा कि जहां हमने लिस्टेड सिक्योरिटीज का 12 मंथ्स वाला पीरियड लिया, कैटेगरी ली, तो 12 मंथ्स को एक्सीड करेगा तो उस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा। जो 24 मंथ से रिलेटेड यूनिट्स थी उस केस में अगर 24 मंथ्स को एक्सीड करेगा तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा। और अदरवाइज जनरली देखा जाए अ कैपिटल एसेट विच इज हेल्ड बाय द एसएससी for more than 36 months before its transfer, it will be considered as a long term capital asset and the gains corresponding to the same will be considered as long term capital gains. Now you could see into your screens that there is a format for long term capital gains. That means ये हमारा पूरा format है जिसके हिसाब से हम अपने capital gains को compute करते हैं। अब ये फॉर्मेट क्या कहता है, पहला पॉइंट देखिए आप, फर्स्ट पॉइंट इज फुल वैल्यू ऑफ योर कंसिडरेशन। दैट मीन्स आपका नेट सेल कंसिडरेशन कितना है, कितने में आपने उस प्रॉपर्टी को, उस एसेट को, कैपिटल एसेट को सेल करा, कितने में उसको ट्रांसफर करा, कितने में उसको एक्सचेंज करा। आप कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर। सो जितना पैसा आपको उसकी सेल से मिला है that is your consideration and that full value of consideration will be taken up as the first very point, right? Now जो भी आपका consideration आएगा उसमें से आपने deductions provide करनी है। there are 3 deductions. deductions किसके regarding है? first is expenses on transfer, यानी कि किसी भी टाइप के आपके litigation charges हैं, right? एनी सॉर्ट ऑफ योर चार्जेस जो कि उस ट्रांसफर को कंप्लीट करने का आपका खर्चा आया है। कोई भी आपके कुछ से कि कोर्ट के एक्सपेंसेस आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि लिटिगेशन एक्सपेंसेस हो गए आपके, सो वो जो खर्चा आया रजिस्ट्री करवाने में या ट्रांसफर करने में, राइट, सो वो सब टाइप के आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो कंसिडर, उसकी जो है आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं आउट ऑफ योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, राइट। सिमिलरली अब ये वर्ड यूज करा है मैंने, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। व्हाई डू वी यूज इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? वी यूज दिस टर्म इंडेक्स व्हेन एवर देयर इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जब आप शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तब सिंपली आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखा जाएगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका नहीं लिखा जाएगा। इंडेक्स कब लिखा जाता है? जब भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होंगे। और इंडेक्स का मतलब क्या होता है? एक्चुअली हम इसे इंडेक्सिंग इसलिए करते हैं क्योंकि यू वुड सी सपोजिंगली एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को आप बेच रहे हैं, सो यूजुअली हम कहते हैं 36 मंथ्स का पीरियड, राइट, एंड प्रॉपर्टी के केस में मैंने कहा 24 मंथ्स का पीरियड। सो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए हमारे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है। I'll take an example in another segment जहाँ पर I'll show you full fledgedly कि कैसे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम कंप्यूट करते हैं। सो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को अकाउंट करने के लिए उस कॉस्ट ऑफ यू कुड से कि आपके एक्विजिशन को इंडेक्स किया जाता है। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कि आपने प्रॉपर्टी बेच दी, ठीक है, आपको इतना उससे सेल वैल्यू मिला, बट आपने उसे एक्चुअल में कब खरीदी थी। सपोज करो कोई प्रॉपर्टी है मैं आज बेच रही हूँ बट मैंने खरीदी थी 1980 में कभी, राइट, तो उस टाइम पर जो मेरा इन्फ्लेशन इंडेक्स था, क्या वो इन्फ्लेशन इंडेक्स आज है? आंसर इज नो।
उस टाइम पर जो प्रॉपर्टी के रेट थे क्या वो आज है? आंसर इज नो, राइट? सो दैट इज व्हाई वी इंडेक्सेशन करते हैं हम जब भी हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं. सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मीन्स कि जब भी आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी वो प्रेजेंट डे वैल्यू में अगर आप खरीदते तो उसका इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना होता एंड अकॉर्डिंगली आपको उसका डिडक्शन मिलता है. सिमिलरली कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, अगेन इंडेक्स. सपोज करो कोई घर खरीदा मैंने, अगेन 80s में खरीदा, उसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी. उसके बाद 2010 में मैंने उसके ऊपर कुछ रेनोवेशन करवाई, राइट? आज चल रहा है प्रेजेंटली 2023, तो अगेन इट इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ 13 ईयर्स, राइट? सो ये जो इम्प्रूवमेंट मैंने 2010 में कराई थी उस टाइम पे जो मेरा रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग होगी या जो मेरी लेबर कॉस्टिंग होगी वो डिफर करती है जो कि मेरी प्रेजेंट डे कॉस्टिंग से है, ठीक है? तो इसलिए हम इस कॉस्ट ऑफ इम्प्रोवाइजेशन या कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को भी इंडेक्स करते हैं. सो ये जो 3 डिडक्शन देने के बाद जो हमारी अमाउंट बचती है उसमें से गवर्नमेंट आपको फर्दर एग्जाम्पशंस प्रोवाइड करती है अंडर डिफरेंट सेक्शन. जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की बात करते हैं तो हमें एग्जाम्पशंस मिलती हैं अंडर सेक्शन 54, अंडर सेक्शन 54B, अंडर सेक्शन 54D, अंडर सेक्शन 54EC, अंडर सेक्शन 54EE, अंडर सेक्शन 54F, अंडर सेक्शन 54G, अंडर सेक्शन 54GA एंड अंडर सेक्शन 54GB, जो कि कंपैरेटिवली हमारी जब हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को निकालते हैं हमारे कॉरस्पॉन्डिंगली एग्जाम्पशंस कम होती है. So long term में you get the long range of your exemptions, right? And the cost of acquisition and improvement is also indexed. So the balancing figure, whatever it will come, it will be your long term capital gains and accordingly आप उसकी tax computation करते हैं. So tax rates क्या होंगे, हम ये आगे further brackets देखेंगे उनकी कि कितने का short term का आपका क्या tax brackets है, long run की आपकी long term capital gains की क्या आपकी tax brackets है, right? Next is, now you could see the short term capital gains का format, right? Now short term capital gains के format में अगर आप देखें again same है, आपका full value of consideration given है आपको जैसे आपके long term capital gains में given थी. same deductions आपको provide हैं for expenses on transfer, but यहाँ पर देखिए आपने cost of acquisition को index नहीं करा, आपने कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को इंडेक्स वर्ड नहीं यूज करा. रीजन क्या है इंडेक्सेशन ना करने का? क्योंकि जो पीरियड है बहुत शॉर्ट टर्म का है, राइट? सो हमने कहा जो एसेट्स है मैं उसको बहुत कम टाइम पीरियड के लिए होल्ड अप कर रही हूँ, उसको सेल करने से पहले मैंने उसको बहुत कम टाइम पीरियड के लिए होल्ड करा है. सो ऑटोमेटिकली उसका पीरियड ही बहुत छोटा है, तो उसमें जो है इन्फ्लेशन का या कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को जो है इंक्लूड नहीं करते हैं. हम सिंपली जितने में वो एसेट्स परचेज करे हैं, जितना भी इम्प्रूवमेंट में एक्सपेंडिचर लगा है, डायरेक्टली विल कंसिडर द सेम बिफोर गिविंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ योर you could say indexation benefit. So this benefit of indexation is available only in case of your long term capital assets. Now ये रिडक्शंस देने के बाद जो भी रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी उसमें से आप एग्जाम्पशंस प्रोवाइड करेंगे. अब यहाँ पर इफ यू कुड सी देयर आर एग्जाम्पशंस गिवन अंडर सेक्शन 54B, सेक्शन 54D, सेक्शन 54G एंड सेक्शन 54GA. यानी कि जो आप देखते थे आपको जो एग्जाम्पशंस मिल रही थी लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म में आपको कितनी एग्जाम्पशंस मिल रही थी? आपको 54 में भी मिल रही है B, D, E, C, E, F, you are getting G, GA and GB. बट यहाँ पर ना आपको EC की मिल रही है ना F की मिल रही है, यहाँ कुछ आपकी रिस्ट्रिक्टेड एग्जाम्पशंस है, राइट? यहाँ आपको सेक्शन 54 में B में मिलेगा, सेक्शन 54D, G एंड GA का आपको एग्जाम्पशंस मिलेंगे. And then after claiming the exemption under all these sections, you will get your short term capital gains. Again, short term capital gains की taxability अलग तरीके से होगी, आपकी long term capital gains की जो taxability है वो अलग तरीके से होगी, ठीक है? वो हम further segments में discuss करेंगे कि क्या हमारे rate of taxes होंगे इनके के लिए, correct? Now moving on to दी एग्जाम्पशन. जैसे इन एग्जाम्पशंस की बात कर रहे थे तो मैं एक शॉर्ट क्विक एग्जाम्पशन लेती हूँ आपका सेक्शन 54 का. नाउ सेक्शन 54 इट सेज
ये आपको जो बेनिफिट मिलेगा एग्जाम्पशन का सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के केस में मिलेगा, राइट। एंड प्लस मोर ओवर ये जो बेनिफिट मिलता है इंडिविजुअल्स एंड HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और इंडिविजुअल के केस में ये बेनिफिट मिलता है। और ये बेनिफिट किस चीज़ का है, अगर वो गवर्नमेंट कहते हैं कि अगर आपने एक हाउस प्रॉपर्टी को बेचकर दूसरी हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं विद इन इंडिया तो आपको एग्जाम्पशन का बेनिफिट मिलेगा। अब गवर्नमेंट से ऐसे मतलब इफ वील से कि सीधा हाउस प्रॉपर्टी बेच के एक और हाउस प्रॉपर्टी खरीदो और दैट मीन्स व्हाट कि आपका सारा पैसा टैक्स एग्जाम्प्टेड हो जाएगा, नहीं। देयर आर सर्टेन रूल्स रिगार्डिंग द सेम। रूल्स क्या कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी आपने एक प्रॉपर्टी खरीद के बेच कर आपने दूसरी प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है कि जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपने खरीदनी है, या तो आप जो पुरानी प्रॉपर्टी आपने बेची है उसके बेचने के 2 साल के अंदर अंदर आप जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी परचेज कर लें, या फिर आप जो है 1 ईयर बिफोर दी ट्रांसफर, यानी कि जब आपने सेल करना है, जैसे कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन यूजली जो है हम ट्रांसफर, सपोज करो मैंने नई बिल्डिंग खरीदनी है, नया जो घर खरीदना है, तो यूजली पहले स्टार्ट हो जाती है कंस्ट्रक्शन। सो इट सेज यू हैव द टाइम पीरियड, इट सेज ईदर आप जो परचेज कर रहे हैं 1 ईयर बिफोर दी ट्रांसफर करिए या फिर विद इन 2 ईयर्स आफ्टर दी ट्रांसफर, ठीक है। ये तो हो गया आपका परचेज का केस। बट नेक्स्ट इज योर कंस्ट्रक्शन। अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी बेचकर नेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं खरीदी बट कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, सो उसके के लिए यू आर हैविंग विद इन 3 ईयर्स आफ्टर दी ट्रांसफर। दैट मीन्स ट्रांसफर होने के बाद 3 साल तक का आपके पास टाइम पीरियड है कि आप प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज टेम्पररी कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम। दैट मीन्स व्हाट इज कि आपका जो कैपिटल गेन, जो आपका जो ट्रांसफर से आपका जो पैसा रियलाइज हुआ है, आप क्या कर सकते हैं, या तो उसको एंटायरली नया प्रॉपर्टी खरीदिए, राइट, या फिर आपने यू कुड से कि आप टेम्परली किसी कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन टू यू। आपके पास ये स्कीम है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ए स्कीम कि किसी भी कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में आप पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर जितना भी आपका कैपिटल गेन हुआ, राइट, मतलब दैट इज योर कॉल। आपको बेनिफिट कितना मिलेगा, जितना आपने इन्वेस्टमेंट करा है नए एसेट में या फिर जितना आपको कैपिटल गेन हुआ है। सो द लोअर ऑफ द टू यू विल गेट अ बेनिफिट और यू विल गेट अ एग्जाम्पशन फॉर जिसका मतलब क्या हुआ कि जितना आपने नए एसेट में इन्वेस्ट करा है या फिर जितना आपको कैपिटल गेन हुआ है, जो भी इसमें से लोअर अमाउंट होगा वो आपको एज एन एग्जाम्पशन मिल जाएगा। बट एक चीज ध्यान रहे कि आपने जो प्रॉपर्टी बेच के नेक्स्ट प्रॉपर्टी खरीदी है, राइट, अगर खरीदने के 3 साल के अंदर अंदर ही आप उसको फिर से बेच देते, यानी कि एक प्रॉपर्टी हाउस नंबर ए था, उसको बेचा, मैंने हाउस प्रॉपर्टी नंबर बी परचेज करा, करेक्ट। आप जो बी परचेज करी है, इस सेक्शन 54 का बेनिफिट लेने के लिए मुझे उस जो प्रॉपर्टी नंबर बी है उसको 3 साल तक होल्ड करना पड़ेगा, यानी कि मैं 3 साल तक उसको बेचू ना। आपकी चॉइस, आप बेच दीजिए, फिर आपको ये सेक्शन 54 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट। सो सेक्शन 54 से इसकी जो आप ये जो हाउस प्रॉपर्टी बी है ना आपकी, जो आपने परचेज करी, इसको आप जो है 3 इयर्स तक होल्ड करके रखें। अगर आप उसको 3 साल से पहले ही बेच देते हैं, सो आपका सारा जो बेनिफिट है वो रिवोक हो जाएगा, ठीक है। सो ये था आपका सेक्शन नंबर 54, राइट। सो फर्दर सेक्शंस हैं हमारे जिसके अंदर हमें एग्जाम्पशंस मिलती हैं, वो सेक्शंस हम फर्दर ऑन जो है नेक्स्ट सीरीज में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो हमने सीजी के फॉर्मेट्स देखे हैं लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म का, टेक केयर ऑफ द सेम, take a note of the same, and further on we'll talk about the taxability and the related provisions with respect to the same. So thank you, and that's it for the day.